all. Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 6th chapter of class 3rd, which is about sweet home. So students, as we all know that we as a living being, all the human beings require a home to live in. Okay, हम सभी अपने अपने होम, अपने घर में रहते हैं. सभी को होम की रिक्वायरमेंट होती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, फ्रॉम द एनिमल्स, है ना. सभी बहुत सारी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम द थीव्स एंड ऑल. उसके लिए हमें हमारा घर चाहिए होता है ना. और जो घर होता है वो काफ़ी स्वीट होता है. कैसे? दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन सम पिक्चर्स. Look at the activities shown in the pictures below. Tick on those activities which you should do at home and across the ones which you should not do. So यहाँ पे हमें कुछ activities given है और इन activities को देखकर हमें ये बताना है we have to tick correct mark on those activities which we should do in our house. वो activities जो हमें अपने घर में करनी चाहिए उन्हें हमें right correct करना है और जो activities हमें घर पे नहीं करनी चाहिए we have to mark cross over them. Okay, see. So first of all they have given the picture. Very first picture is what कि ये जो boy है he has spread all his toys and the objects through on the floor of his house. अपने घर में अपने floor पर सभी toys and objects को he has spread it over. Okay, so this is not a good activity. We should not do like this. That means we are going to put wrong over it. Next, see here what is the boy doing. ये जो boy है वो अपने जो clothes है उन्हें properly अपने wardrobe में क्या कर रहा है, arrange कर रहा है. So it's activity which we should do. We should manage our house properly and the clothes also. So we are going to mark it tick. Okay, now next in this picture this boy is throwing the garbage into the dustbin. Okay, it's again a good activity, good habit. So we are going to mark it tick. Over here the boy is spilling water on the ground floor. घर के फ्लोर पर वो क्या कर रहा है, वाटर को स्पिल कर रहा है, which is not a good activity. We should not do like this. That means we are going to mark cross over it. So let us know more about a good house and how we can keep it clean. So आज हम लोग क्या एक अच्छे घर के बारे में और कैसे हम उसको अच्छा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं we are going to discuss today. See, we all need a home to live in. It keeps us safe from heat, cold, storm and rain. We should keep our home neat and clean, right? This only I told you in the starting of the chapter कि हम सभी को घर की रिक्वायरमेंट होती है. घर हमें हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, रेन बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. प्लस हमें उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. सी, अ गुड हाउस, एक अच्छा जो घर होगा, देयर शुड बी डोर्स एंड विंडोज इन द हाउस टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. एक अच्छे घर में प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज होने चाहिए सो दैट घर के अंदर फ्रेश एयर और सनलाइट एंटर कर सके. The doors and windows should be fitted with a wire mesh to keep insects like flies and mosquitoes away. घर में जो doors and windows है, okay, उनमें एक इस तरीके से wire net होना चाहिए. See, इस तरीके से they have shown the picture also, है ना, so that जो flies है, mosquitoes है, वो घर के अंदर enter ना कर सके. A house should have open spaces like veranda, lawn, courtyard, etc. They make the house airy and give children a place to प्ले इन. एक घर में ओपन स्पेस होना भी ज़रूरी है, खाली थोड़ा काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस होना चाहिए लाइक वरंडा, लॉन या कोर्टयार्ड. उससे क्या होता है घर तो एक थोड़ा एयरी बनता है, प्लस जो घर में बच्चे होते हैं उनको एक जगह, एक प्लेस मिल जाती है टू प्ले. ओके, नेक्स्ट, देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउस. घर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना भी ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ द हाउस. तो जो ऊपर हमने फीचर्स पढ़े वो एक अच्छे घर के थे कि घर में, एक अच्छे घर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन अब हम अपने घर की केयर कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस. तो नंबर 1 इज़ वी मस्ट स्वीप एंड मॉप आवर हाउस एवरी डे. हमें अपने घर में प्रॉपर स्वीपिंग, प्रॉपर मॉपिंग डेली करनी चाहिए सो दैट हमारा घर नीट एंड क्लीन रहे. वी मस्ट कीप थिंग्स इन द राइट प्लेसेस. घर की सारी चीज़ों को उनके एक प्रॉपर प्लेस पे रखना ज़रूरी है. द ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी कवर्ड. मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर एंड कैन स्प्रेड डिजीजेज. जो किचन, बाथरूम में जो ड्रेन सिस्टम है वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए क्योंकि जो मॉस्किटोज़ हैं वो इसी तरीके के डर्टी और जो स्टैगनेंट वाटर होता है वहाँ ब्रीड करते हैं और फिर बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. वी मस्ट थ्रो द वेस्ट इन क्लोज डस्टबिन सो दैट फ्लाइज मे नॉट सेट ऑन द गार्बेज एंड ले एग्स. ओके, जो आपका घर में सारा वेस्ट है उसको हमें क्लोज डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए लाइक दिस.
ओके इस बच्चे की तरह, सो दैट क्या ना हो उस पर जो फ्लाइज है वो उस पर बैठ ना सके और ना ही अपने एग्स ले करके और अपनी फ्लाइज ब्रीड करे। वी शुड क्लीन बाथरूम्स एंड वॉश बेसिन्स डेली। जो बाथरूम्स है, वॉश बेसिन्स है, उनको डेली क्लीन किया जाना चाहिए। वी मस्ट थ्रो गार्बेज इन अ प्रॉपर प्लेस। घर का जो गार्बेज है वो प्रॉपर प्लेस में थ्रो करना है। वी मस्ट रिमूव द cobwebs regularly. The curtains must be washed and carpet should be cleaned regularly. जो घर में cobwebs होते हैं उनको हमें रिमूव करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। घर के कर्टेन्स को वॉश किया जाना चाहिए। कारपेट्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना ज़रूरी है, सो दैट जो हमारा घर है वो कैसा रहे, नीट, क्लीन एंड हाइजीनिक रहे। ओके, सो this is all for the chapter. The chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.